بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان سلام اپنا صحیح کریں۔ سب سے پہلے جنت کو جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہیں کھانا کھلانا سلام کرنا ہم عام نہیں کرتے۔ دیکھو ہمیں کتنی شرم ہے، اب کیسا کرے سلام؟ کوئی سلام کا پورا جواب بھی دینا نہیں پسند کرتے۔ ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آدم علیہ السلام سے شروعات کی ہے۔ ہاں نا؟ پھر کروں میں سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں آپ صرف سلام کرتے ہیں، اس لیے اس کے بعد ہی آپ جواب دے رہے ہیں۔ اس میں پتہ چل جاتا ہے ہمارے گھروں میں کتنا دین پھیلا ہوا ہے، دین کو کتنا ہم نے محفوظ کیا ہے، کتابوں میں یا دلوں میں یا گھروں میں، کہاں پتہ چل جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں اس کے بعد ہمارے گھروں کے اندر یہ قائم کریں گے۔ شوہر کو بھی بولیں گے اندر آتے وقت سب سے پہلے سلام نہ کریں، اندر آتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیں، پھر سلام کریں۔ الحمدللہ بیان ایسا ہو جو ہمارے گھروں میں جو بھی معاملات ہیں اس کو درست کریں، یعنی صحیح کریں۔ الحمدللہ انشاءاللہ و تعالی۔ الحمدللہ تو ہم گھر میں آتے ہی یا کوئی کہتے ہیں بسم اللہ، یا باہر سے اندر آتے وقت تھوڑی سی تربیت کر لیں۔ قرآن تربیت دیتا ہے ہمیں، ماں باپ تربیت دیتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے، ساس سسر دیتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے، خاندان دیتا ہے تو اچھے نہیں لگتے، قرآن دیتا ہے تو بھی نہیں اچھے لگتے۔ قرآن کی جب بیان کرتے ہیں تو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، قرآن کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ پسند نہیں ہے۔ بچوں کو بلاؤ، ادھر بٹھا لو، آ جاؤ، بولو آؤ بچوں، بولو ان کو نظر بازی آئے، بولو۔ بچوں کو بچپن سے دین سکھائیں گے تو دین میں موجود ہوں گے، نہیں تو بولیں گے ہم بچے ہم کھیلنا چاہتے ہیں۔ بچپن سے ہم نے دین سیکھا ہے تب ہم نے اخلاق سیکھے۔ آ جاؤ ادھر، آؤ نیچے آؤ، سب نیچے آؤ۔ سلام نہیں کرتے بیٹا آپ؟ سلام نہیں سکھایا آپ کے باجی؟ السلام علیکم، آ جاؤ ورحمۃ اللہ آ جاؤ بچے پورے آؤ، آؤ سنو۔ کوئی بھی اوپر نہیں جانا، کوئی بھی اوپر جائیں گے نا میں رات بھر یہیں پہ بیان کرتی رہوں گی، بیٹھ کے سنیں گے تو مغرب کے بعد میں چلی جاؤں گی، جب تک سن لینا، مجھے مغرب تک برداشت کر لینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے بچوں؟ میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ سے آپ سب کو برگر، پیزا، فرینچ فرائی، چپس، آئس کریمز وغیرہ وغیرہ سب عطا کریں دنیا میں و آخرہ میں، ٹھیک ہے بچوں؟ تیار ہو سننے کے لیے؟ ریڈی؟ الحمدللہ، اوکے۔ کوئی اٹھ کے اوپر نہیں جائے گا، اگر جائے گا رات بھر بیان کو بٹھاؤں گی یہاں پہ۔ ڈن؟ بسم اللہ، چلیں۔ الحمدللہ بچوں کو چھوڑ کے کوئی کام نہ کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں دین قبولے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں خدمت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فجر کو اٹھ کر پانی وضو کا بچہ لے جا کر نبی کے پاس ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتا تھا۔ ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت نہیں دے رہے ہیں، یہی وجہ ہے ہمارے دین کو ختم کر دیے ہیں۔ جاؤ بچوں کھیل لو، جاؤ بچوں جاؤ کارٹون دیکھ لو، جاؤ بچوں ٹی وی دیکھ لو۔ آپ کا فرض ہے، آپ کے لیے بینک اکاؤنٹ تمہارے بچے ہیں، تربیت کر کے جائیں گے، مرنے کے بعد جو اعمال کریں گے وہی ہمارے حصے آئے گا۔ آج ہم جوان ہیں، کل بوڑھے ہو جائیں گے، آج یہ بچے ہیں۔ 3 ہی عمر ہے، یہ 3 عمر کے بعد کوئی عمر نہیں ہے۔ کسی کے پاس بچپن ہے، کسی کے پاس جوانی ختم ہو گئی، کسی کے پاس ادھڑ عمر ختم ہو گیا، کوئی بڑھاپے میں ہے، اس کے بعد کوئی عمر نہیں ہے۔
अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, होशियार हो जाओ, थोड़ा गफलत से निकल जाओ, ये वक्त है, कमा लो। अपनी ज़िंदगी किस तरीके से कुरान करीम के तरीके से करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो अल्लाह ताला आपको क़यामत में पूछेगा, मुझे भी पूछेगा, हम सबको पूछेगा, छोड़ेगा नहीं अल्लाह ताला। निहत्ते खड़ा करेगा, नंगा खड़ा करेगा, कपड़े नहीं होंगे, जिस्म पे एक तार कपड़ा नहीं होगा, पैरों में जूते नहीं होंगे, सर पे चादर नहीं होगी, ना घर होंगे, ना शौहर बच्चे होंगे, ना खानदान होगा, ना कोई रिश्तेदार होगा, कोई नहीं होगा। माँ बाप भी साथ नहीं देंगे, अपने औलाद भी साथ नहीं देंगे, कोई अपना नहीं रहेगा। निहत्ते नंगे खड़े होंगे, सिर्फ हमारे आमाल हमारे साथ आएंगे। चुप, हमारे आमाल हमारे साथ आएंगे। इस अमाल की हमें फिक्र ही नहीं है, अमाल की हमें फिक्र नहीं। गुड़िया सुन लेना, ठीक है? मैं देख रही हूँ यहाँ से, आप चश्मे से देख रही, मैं डायरेक्ट देख रही हूँ। बाद में मैं भी चश्मे से देखूंगी आपको, ठीक है इंशाअल्लाह। जब हम गलतियां करते ना, बच्चों को ऐसे ही पकड़ते थे, पकड़ते 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 अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास छोटे छोटे बच्चे कितना हिफज कर लिए हैं, इल्म जान लिए, इल्मियत आलिम बन गए। किस वजह से? रोज रोज मर्रा का जो खिलाते हैं इल्म, वो उनको समझ आता रहेगा। तो यही बात है, हम सबसे पहले जान लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सुन्नी जमाती अहले हदीस के अलग अलग नबी नहीं थे, 4 हिस्से नबी के नहीं थे, एक ही नबी थे सारे उम्मत के लिए। यहाँ तक कि एक कौम के लिए नबी आते थे, हमारे नबी पूरी कायनात के लिए हैं, पूरी कायनात के लिए। ऐसे नबी की उम्मत ऐसी क्यों होनी चाहिए? ऐसे नबी की उम्मत ऐसी क्यों होनी चाहिए? हम क्यों जुदा जुदा हैं? हम काले अलग बैठेंगे, गोरे अलग बैठेंगे, मोटे अलग बैठेंगे, पतले अलग बैठेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे, चलो करेंगे इसे। अच्छा लगेगा किसी को? हमारे दिलों को अच्छा लगेगा? हमारे दिल कितने टूटेंगे, है ना? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितना टूटेगा, अल्लाह ताला कितना नाराज रहेगा जब हम फिरके बनाकर जुदा जुदा करके फलां हम फलां हम फलां हम फलां करके हम बैठ गए। कितनी नाराजगी होगी, अल्लाह ताला को कितना कितना गुस्सा आता होगा। हाँ आएगा गुस्सा को, अल्लाह ताला को इतना गुस्सा आएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं क़यामत के दिन, मैं आज रो रही थी दोपहर में, अब यहाँ से आने से पहले प्रैक्टिस कर रही थी, आज मैं क्या सिखाऊं अल्लाह ताला, मैं क्या पढ़ूं। मैं पढ़ने से पहले मुझे बहुत दुख हो के रोना आया। मैं बोली ऐ रब आप कितने बड़े हैं, इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े। इंडिया पाकिस्तान पूरे कंट्रीज मिलाकर पूरी दुनिया को जमा कर लो, पूरी दुनिया जमा करके ऐसे 7 ज़मीन जमा कर लो, 7 ज़मीन जमा करके बीच में का खिला जमा कर लो, फिर उसके बाद आसमानों को 7 आसमानों को जमा कर लो, उसके पर कुर्सी के पर सिर्फ आपका कदम, एक कदम। इतने बड़े आप इतने बड़े, आप इतने बड़े, इतना बड़ा तकब्बुर तुम्हारा, इतना बड़ा सामान तुम्हारा, इतनी बड़ी सल्तनत तुम्हारी, इतनी बड़ी खुदरत तुम्हारी। आप इतने बड़े होकर हम बंदे तुझको नहीं पूछते, हम तुझको नहीं मानते। मैं भी दरगाह पढ़ी थी, या गौस अल मदद कहने वाली थी मैं। आज भी या अल्लाह अल मदद के नारे के बगैर कुछ नहीं होगा। उसी लफ्ज को बदलो। किसके पास खबर में गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, उन पे दरूद व सलाम भेजो। आपका हक बनता है। गुड़ फुटाने मुरमुरे वो उतने नहीं है, कम जन्नत के नेमतों में है, बड़ी बड़ी जन्नतों में है। वह बुजुर्गान दीन फुटाने गुड़ वगैरह ले जाते हो, ये जरूरी है, ये जरूरी है। चादर एक मामूली सी, फॉर एग्जाम्पल कोई एक मखमल की कोई ले जाते हो, मर्द है, औरत की साड़ी के कपड़े को ले जाओ के उड़ाओगे? यही दीन है हमारा, यही बुजुर्गान दीन की मोहब्बत है, इसी को मोहब्बत कहते हैं, यही मोहब्बत है। मर्द को औरत के कपड़े उड़ाओगे? मैं भी दरगाह घराने की हूँ, मैं भी शरीयत पे नहीं जानती थी, फिर मुझे एक ऐसे ठोकरें लगाए अल्लाह ताला जिंदगी में कि मैंने तलाश करने लगी दीन की, फिर गहराई में उतरने लगी। गई मैंने कई जगहों पे, गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के दादा की तरफ जाना हुआ, नबियों की तरफ जाना हुआ, हर जगह जाना हुआ। एक ही चीज मैंने देखी, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे नबी है रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे नबियों ने एक ही नारा बुलंद किया, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक ही नहीं है। इतना मालूम है हमें, मगर वो रब कितना बड़ा है, वो कैसा है, वो कहाँ है, किस हाल में है, वो क्या चाहता है हमसे, वो हमसे क्या तलब करना चाहता है। अब आप दावत दिए, ये फलां, ये बीबी, ये औरत, ये अन्निसा, ये मैडम, वॉट एवर, कोई भी लैंग्वेज में कोई भी बात बोलो, इन्होंने दावत करी अल्लाह की खातिर, मगर इनको फिक्र थी कि मेरे मेहमान क्या खाते हैं, कड़वी कुफ्ते या बिरयानी, या कोई बिरयानी नहीं खाने वाले खुश का, फिक्र थी इस औरत को। आप गवाह हैं, नहीं गवाही देते? आपने लंच में जो खाए गवाही नहीं देंगे? क्योंकि लंच मुझे भी आया था, इसलिए आप पूरे नाम में बता रही हूं। इन्होंने ख्याल की ना मेहमान की, आप क्या ख्याल कर रहे हैं रब्बुल आलमीन का? अल्लाह क्या पसंद करता है? खाना पसंद करता है, वो खाता ही नहीं है। पीना क्या पसंद करता है? पीता ही नहीं। हम कहते हैं अल्लाह खाता तो हम वो पकाते, वो पकाते, वो पकाते, वो पकाते, वो खिलाते। अरे नादानो, जो पका है उसके नाम से रोज एक प्लेट दे दो, बस है, एक प्लेट उसके नाम से निकालो। जब बुजुर्गान दिन की मोहब्बत है, वो अल्लाह के नाम से निकालो, सवाब उनके लिए निकालो। आपको मना नहीं किया गया है, आपका दीन ऐसा सख्त नहीं है। आपको मोहब्बत करना है, करो। कसरत से दुआ पढ़ो कि मोहब्बत करती हूँ अल्लाह से और अल्लाह के नबियों, वलियों से, सालिहीन से, सिद्दीकीन से। सजदे में पढ़ने की इजाजत है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका हुब्बका मन युहिब्बुक हुब्बका अमली युक़र्रिबुनी इला युहिब्बुक। अब कौन है दरगाह पार्टी? समझ में आया? दीन एक दीन, दीन के टुकड़े। मैं जब से आई हूं 11वां साल है, मेरी एक ही तलाश है, पूरे दीन एक दीन है। क्यों जुदा है? क्योंकि ये निजाम अल्लाह चला रहा है, तो जुदा है ही। हमारा फर्ज बनता है कि सबको मिला के जोड़ें, जुड़ के एक बने, तब जाके क़यामत में नेकोकारों की जमात में होंगे। अगर नहीं जोड़ेंगे, जुदा जुदा करेंगे, वो जमात में जुदा करने वालों को नहीं रखा जाएगा। अब इन मासूम बच्चों को मैं बुलाई, क्यों बुलाई? क्योंकि दीन उनके दिलों में कुछ पहुंचे। ये किसका फर्ज है? माँ बाप का है, उसके बाद उनके घर के बड़े बुजुर्गों का है कि बच्चों को दीन में डालें, दीन समझाएं। कल मरेंगे एक दिन, फैशन करने वाले भी मरेंगे, मिड्डी पहनने वाले भी मरेंगे, चड्डी ब्रा पहनने वाले भी मरेंगे, बुरखा पहन के हया करने वाले भी मरेंगे। हर कोई मरेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। सबको हिसाब देना है। क्या समझ गए? फैशन मैं जितना करी कोई नहीं करे होंगे। मेरा पार्लर था दुबई में, मीडिया वीडिया ऐसे गंदगी तो नहीं थी माशाल्लाह। वो ड्रेस होता था, दुपट्टा होता था, बाल वहां तक की हद तक गुनाह हुए हैं। अल्लाह मुझे माफ कर दे, हम सबको माफ कर दे। मेकअप किया करते थे हम, अभी भी है। करो, शौहर के लिए करो, शौहर के लिए बाकायदगी से करो, मगरिब होते ही करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कंघी चोटी करो, खुलिया बदलो, अपने आप को सही करो, मगरिब होती ही सुन्नत है। अल्लाह ताला कहते हैं हर नमाज को सवर कर, पहन ओढ़ कर नमाज का हो। नमाज को हम ऐसे गंदे कपड़ों से जाते हैं, शादी को जाने के लिए पूरा सज के जाते हैं, पूरी तरह से टो से लेकर टॉप तक हमारी पूरी सजावट होती है। बहनों, कोई गुनाह नहीं। कुरान क्या कहता है? आपको कहता है पर्दा करें गैर महरूमों से, मगर हम नहीं, सबके सामने चले जाते हैं। वो भी देखते यार कितनी अच्छी है, उसकी भी मैं बीवी बन गई, वो और एक देखेगा मुझे देखेगा। आपको नहीं कह रही हूँ, आपको नहीं कह रही हूँ, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, ताना नहीं दे रही हूँ मैं। गौर से सुनना, मैं अगर जाऊंगी ऐसी तरीके जो सवर के जाती थी, वो आदमी देखता था कितनी सारी खूबसूरत है, तो उसकी बीवी बन जाएगी फलानी औरत। मैं भी नहीं कहूंगी, आप भी नहीं होंगे। कोई गुनहगार को रखते हैं यहाँ पे जो कभी मुसलमान नहीं होगी। अल्लाह सबको ईमान अता करे, अल्लाह सबको ईमान अता करे। हर मर्द, कोई मर्द देखेगा बाल बड़े हसीन हैं, हो गई उसकी बीवी फलां बन जाएगी। कोई देखेगा चेहरा बड़ा, आजकल कैसा है पता है? हमें तौहीद पे हैं, हम शरीयत पे हैं। बाजी को तक नहीं छोड़ी मैंने, माफ कर दो, हाँ माफ कर दो। दीन सबके लिए एक ही है। आप बड़े हैं, मैं छोटी हूं, मगर दीन सबसे बड़ा है, इस्लाम सबसे बड़ा है। तो हम शरीयत पे रहकर, कई औरतें अपने आप को सुन्नत पे अमल करने वाले कहते हैं।
मेरा सवाल है सुन्नत पे अमल करने वालों से। देखो मैं नहीं डरती, कई लोग हैं सुन्नत पे अमल करने वाले हैं, उनके सामने मैं ऐलान कर रही हूँ। मैं बैतुल माल में गई, पूरे दरगाह पार्टी 99-95%, मैंने पूछी इनको, पंजे तुम बिठाते हो, कपड़े यूं लपटते हो, अल्लाह को साड़ी पहनाते हो, क्या अल्लाह साड़ी पहनता है? मैं आपके सामने पूछूंगी, सुन्नत सुन्नत कहते हो, क्या आप लोग सुन्नतों का अमल कर रहे हो? देखो अपने आप को, मैं देख रही हूं, आप भी देखो, हम सब देखें सुन्नत किसको कहते हैं। हदीस पे चलते हैं कहते हैं अपने आप को, मगर हदीसों को छोड़ दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिलता है कि आप चेहरे को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिलता है कुरान करीम में कि आप चादर को सर पे डालें, अपनी बीवियों को कहें, अपने घर वालों को कहें, उम्मत मुसलमान की सारी औरतों को कहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है कि अपने सर के ऊपर चादर डालो, चेहरे को बंद कर लो। मगर हमारे यहाँ कैसा स्टाइल होता है, पूरा ड्रेसिंग पूरा टाइट फिटिंग होती है, ओके, शरारे गरारे सब होते हैं, दुपट्टा लेते हैं, सर पे एक चादर छोटी सी दुपट्टा ले लेते हैं, क्या हिजाब। ये कौन कर रहा है? इब्लीस। मुझे और आपको अल्लाह से दुआ करती हूँ इब्लीस से निजात मिल जाए। अल्लाह ताला कहते हैं हिजबुल्लाह में आ जाओ, हिजबुल शैतान में नहीं जाना, शैतान के बेटे की बात नहीं मानना, शैतान की नहीं बात मानना। मैं नहीं डरती, कोई कत्ल करना चाहते हैं तो मेरा कत्ल कर दो, मैं सबसे लड़ूंगी, मेरे अल्लाह की खातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर। सुन्नत कहते हैं, सुन्नत को क्यों छोड़ा है? आपके घर में आई हूं, आप लोग कई अहले हदीस हैं, अहले हदीस कहते हैं हदीस को कहां चुना है तुमने, क्यों पर्दा नहीं किया हम में से? आप कौन करते हैं मुझे नहीं मालूम, कौन नहीं करते मुझे नहीं मालूम। सुनने वालों को सबको एक ही ऐलान है, सबको एक ही ऐलान है, चेहरे को खुला, खूबसूरत चेहरा, सफेद रंग, उस पे लाल लिपस्टिक मैंने भी लगाती थी। मैं साथ हूं आप सबके, मैं भी खताकार हूं, आप भी खताकार हैं। हम सब माँ के पेट में से अच्छे आए, गुनाहों के बगैर आए, फितरी दीन पे आए, फिर हमारे कई लोगों ने हमें बदल दिया, हमें बदल दिया। हमें फर्ज बनता है कि हम अपने आप को सही करें। खोलो हुजूरात, देखो आयत क्या कहती है। कुरान कहता है कि अपने सर पे चादर लो, ये नहीं कहा है लाल रंग की लो, पीले रंग की लो, हरी रंग की लो, नहीं। जीनत इख्तियार का मतलब खूबसूरत दिखो अल्लाह ताला के लिए, खूबसूरत दिखो अपने शौहर के लिए, खूबसूरत किसी और के लिए दिखेंगे जनाकारी औरत कहा है कुरान करीम। अब बोलो मुझे, मैं जनाकारी औरत थी ना, मैं जनाकारी औरत थी ना। अब आप में से अगर कोई नहीं कर रहे हैं तो सोच के कुरान की आयत खोल के देख लो, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करो, उसके बाद एक्सेप्ट करो। नहीं आप खामोश रह जाएंगे, मैं जान के खामोश रह जाऊंगी, आप जान के खामोश हो जाएंगे। खबर में जब लपटेंगे कफन में तब पता चल जाएगा। सबको लपटना है ना, कौन छूटा है? ये बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बूढ़ों तक किसी को छोड़ा है? ये नबियों को छोड़ा है, वलियों सालिहीन सिद्दीकीन को छोड़ा है? नहीं, एक ही जात है जिंदा, वो है रब्बुल अर्शिल अजीम, वो है रब्बुल आलमीन। 7 जमीन 7 आसमान, उसके ऊपर कुर्सी, कुर्सी के ऊपर एक कदम आपके मेरे रब्बुल आलमीन का। और कितना बड़ा है अल्लाह तो नहीं मालूम, तेरा एक कदम इतना बड़ा है, तेरी इतनी बड़ी जात है, इतनी बड़ी किबरियाई है। मैं तुझसे मांगती हूँ, मैं जन्नत में घर दे दे अल्लाह, तेरा दीदार करा दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से आबे कौसर तो पिला दे, हमारे गुनाहों को उठाकर नेकियों में तो तब्दील कर दे। या मेरे मौला, मैंने भी गुनाह की, मैंने भी फैशन किया, मैंने भी बाल खोले, मैंने भी सब कुछ किया, आप भी कर रहे, छोड़ दो। तौबा किसको कहते हैं? तौबा किसको कहते हैं? तौबा कोई बोलेंगे? तौबा किसको कहते हैं? कोई बोलेंगे? हमारे सबके घरों में दर्स चलता है कुरान का, हर घर में होता। मैं कह रही हूँ दर्स वो दो जो दिलों के
अंदर चीर कर निकल कर चले जाए, एक इंसान तो बदल जाए वहां से, कम अज कम उस महफिल में एक इंसान तो अच्छा हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ करके आती हूं, इनके दिलों को तेरा दीवाना बना दे अल्लाह। अल्लाह तेरे तरफ इनको सबको फेर दे, बदल दे इनके रास्ते, जैसे जमीन और आसमान को तू बदलता है, चांद और तारों को, बच्चों को हमने इतनी बदतरबियत कर रहे हैं, अल्लाह हम पे रहम करे। तौबा का मतलब क्या है? कोई बोलेंगे? गुनाहों से माफी मांगना। और कोई बोलेंगे? कल्याण पे थप्पड़ा मारने का छोड़ डाले हम लोग। वो पहले हमारे बचपन तक वो थप्पड़ मारते थे, तौबा 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 तौबा, ये काफरों का तरीका है। इसमें भी मैं माना समझाऊंगी। बोलिएगा और कुछ है? अस्तगफुरुल्लाह, इतना ही दीन वाले जानते हैं, यही लिए यस आइंदा मैं उसको छोड़ दूंगी। पकड़ो हाथ और एक बार, मैं इसको छोड़ दूंगी। मुझे फेंको आप, मैं इसको छोड़ दूंगी। मगर हम कभी नहीं समझे। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह तू माफ कर दे। सुबह को उठे, फुल ड्रेसिंग करे, बाहर चले गए। शादियों में बुर्खा, नकाब, हिजाब सब पहनते हैं, जाके अंदर पूरा निकाल को मस्त पिनअप करके छोटी सी एक डाल लेते हैं। कफन के अंदर सीने को जो लपटते हैं ना, उतना कपड़ा सर पे बांध लेते हैं। कस के जो कफन में बांध, परसों देखी में कफन झटक के हड्डियां निकाल रहे थे, इन्होंने हाथ पकड़ के कहा बस करो नज़र, और मुझे देखने नहीं होता, और नहीं भेजो। इन्होंने भेजा था, बस करो नहीं देख पा रही हूं मैं। कफन यूं झटकते हैं, सीने को कस के जो बांधे, वो कपड़ा जो निकला, मैं डर गई। अल्लाह, सीने पे हमारे चादरें सही नहीं थे। कयामत के दिन सीने को लेकर पकड़कर खंभियों में डालकर ठोस कर बांधा जाएगा ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों से देख कर आए हैं। हर मर्द, कई मर्द नहीं, हर मर्द नहीं कहते, माफ करना, सारे मर्दों पे अल्लाह की रहमत हो, सारे औरतों पे अल्लाह की रहमत हो, हमारे सब पे अल्लाह की रहमत हो। कई मर्द कहते हैं औरतों को अल्लाह के नबी देख कर आए हैं, जहन्नुमी है। नहीं नहीं, ये बात वापस ले लें। वो सारे मर्द देख कर आए हैं, जहन्नुमी है। वहां कहीं हर औरत जहन्नुमी नहीं है, हर औरत जहन्नुमी नहीं है। जो देखा था आकर बताया, होशियार हो जाओ। हमें साथ दिया हमारे नबी, कई औरतें दुश्मन बन गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हमारे नबी क्या ऐसा बोले, कहते ना, अरे पागल औरतें हैं, सुनो तो सही। अल्लाह ताला के नबी ने कहा है, मैं देख कर आया हूं, तुम होशियार हो जाओ। तुम कम नमाज पढ़ती हैं, कम सदका देती हैं, और क्या करती हैं हम औरतें? नहीं नहीं नहीं, लानत बहुत बेचती हैं। अल्लाह की लानत हो इनके ऊपर, अल्लाह की लानत हो इनके ऊपर। लान तान जो करती हैं, उसलिए जन्नत को कम जाती हैं। और माहवारी के 6 दिन 7 दिन हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ती हैं। बच्चा पैदा होता है तो 25 दिन 40 दिन, उसके 10 बच्चे हुए तो कितनी नमाज कम हो गई। इसलिए कहा नबी सर, पूरी बात नहीं लेते, पूरी बात नहीं लेते, मेरे नबी के दुश्मन बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे और नेक हिदायत अता फरमाए। तो आपने कहा सदका खैरात ज्यादा करो, क्योंकि हम औरतें कंजूस हैं। कई औरतें, पूरे नहीं, है माफ करना, कई औरतें पूरे नहीं, क्योंकि जमाते हैं बंगड़ियां लेने के लिए। अब सब हंस रहे हैं, पहले मेरे पर मुंह बना रहे थे। हार लेने के लिए पैसे जमाते हैं, वो ये पर्दे लेने के लिए पैसे जमाते हैं, कारपेट लेने के लिए, झूमर लेने के लिए, किचन का डिनर सेट बड़ा अच्छा है वो चाहिए, मैट, डोर मैट बड़ा खूबसूरत चाहिए, हर चीज चाहिए पैसा। मगर राह में अल्लाह की खर्च करने के लिए जरा दिल कटता है। आजकल नहीं कट रहा है कई औरतों का, माशाअल्लाह बेहिसाब दे रही हैं अल्लाह की राह में। मैं देखकर खुश हो जाती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है कि अल्लाह और हिदायत दे, जो नहीं है हिदायत उनको भी हिदायत फरमा। औरतें अब बोलो, मेरे नबी सही है गलत है? बोलो, सही है गलत है? कैसी उम्मत है भाई, हम सारे खामोश बैठे हैं, सपोर्ट उनकी लेने के लिए निकल जाएंगे मारने मरने के लिए। नहीं, कोई बोले रसूलुल्लाह को मारने चले जाएं, नहीं, दुआ करेंगे, हम अपने पर्दे में रहेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, ठीक है? तो सदका खैरात ज्यादा करो, तौबा इस्तगफार ज्यादा करो, और सबसे ज्यादा शौहर की नाशुक्रियां।
मैं भी नाशुक्री करी हूँ, इन्होंने भी किया है, आप सब ने भी किया है, एक औरत भी नहीं बची है जो ना शुक्रगुजारी पूरी तरह से की हो। आप में से कोई है, हाथ उठा सकती हैं? एक मर्तबा तो नाशुक्री नहीं की होगी अपने शौहर के साथ? हाँ बोलो बोलो। हाँ एक जन तो नाशुक्री नहीं, हर कोई करा हुआ है, इसलिए कहते हैं हाँ हर कोई करे हुए हैं। एक से दो औरत मिल गई तो नहीं एक मर्तबा तो की होगी बाजी। बिल्कुल नहीं, जिंदगी में हमारी बहू भी नहीं कर पाए, मैं अब तक करती हूँ। नहीं, मेरे फूफू ना बहुत सफर करको है, कभी जिंदगी में नहीं कर। वो अब हम नहीं दलील देना, ये दलील देना सबसे बड़ा गुनाह है, आपकी बहू की हो या बेटी की हो। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे एक बच्चा शहीद हो गया, कट के खत्म हो गया, बोले छुपा दो, माँ देख के रोएगी। फिर माँ जल्दी आ गई तलाश करते हुए जंग के मैदान में, देखती हाय मेरा बच्चा, तू जन्नती है, जन्नत में रहेगा। अल्लाह के नबी ने कहा कैसे कह सकती हो जन्नत की बात, तू डिक्लेयर नहीं कर सकती, हम नहीं बोल सकते, उन्होंने किए होंगे। वल्लाहु आलम, क्या बोलेंगे? वल्लाहु आलमु, अल्लाह ताला जानता है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला जो लफ्ज कहता है ना, उसमें मैं मानती नहीं किसी की बात। अल्लाह ताला कहते हैं यब्न आदम कुल्लु खत्ताउन, हर कोई खताकार है, खता करता है। जब अल्लाह के नबी ने कहा है उस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, कोई ना कहीं तो खता होती है, इंसान खता करता है, इसीलिए तौबा रखा गया है। अगर ये बात बोलेंगे तो ये अल्लाह की बात झूठी हो जाएगी, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ठीक है, क्योंकि कौन क्या कैसा है किसको नहीं मालूम, खामोशी से भी कोई किसी का दिल दुखा देता है। चुप रहते हैं, कभी यूं आंख चढ़ा देते हैं, चुप रहते हैं जरा यूं मुड़ के हट जाते हैं, चुप रहते हैं जरा यूं हो जाते हैं। इसको कहते हैं ना, ये बॉडी लैंग्वेज और जबान की लैंग्वेज, इसको कहते हैं वाइलुल लिकुल्ली हुमज़ातिल लुमज़ा। हुमज़ा अलग है, लुमज़ा अलग है, कभी नहीं बोलना हर कोई खताकार है। अल्लाह ताला के पास तौबा इसलिए है कि आप तौबा करें। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने नियत की कि या रब मैं सज सवर कर शादियों में, मेरा बेटे की भी शादी अगर 5-6 साल के बाद, अभी 20-21 साल का है, अगर जब बड़ा हो जाए, शादी के काबिल का हो जाएगा, शादी अगर होगी इंशाअल्लाह, मैं पूरे इसी पर्दे में रहूंगी, मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी। मैंने नियत की और ज़माना पहले मैंने नियत करके पूरा तरह से पर्दा कर लिया। आप में से किसी ने नियत करे हैं? मैं गुजारिश करेंगे, पहले कान पकड़ के आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं पूछने की इजाज़त अगर आप देते हैं तो मैं पूछती हूँ, शादियों में कौन कौन बुरखा निकालते हैं? ज़रा हाथ उठाए, मैं समझाऊंगी कुरान और हदीस के हिसाब से। नाराज़गी नहीं है, जब अल्लाह देख रहा है तो मेरी क्या औकात है? जब अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह से नहीं डर है, तो मेरे से किस बात का डर है? मेरी क्या बिसात है? मैं खुद गुनहगार हूँ, मैं खुद बदकार हूँ, मैं खुद सियाहकार हूँ। बोलिएगा कौन कौन शादी में बुरखा निकालते हैं? हाथ उठाओ प्लीज, हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ प्लीज, हाथ उठाओ। अभी जब से आप मुस्कुरा रही थी अभी नहीं निकालो, नियत कर लो। जब अल्लाह ताला कहते हैं जनाकारी औरत, मालूम है जनाकारी औरत का मतलब? तवाइफा औरत, प्रोस्टिट्यूट औरत कहा गया है। क्योंकि जब हम संवरते हैं तो कई मर्द देख लेते हैं ना, कभी हमारे हाथों को मेहंदी लगी होती है, हम सब मेहंदी लगाते हैं ना शादियों में, हर कोई लगाता है ना, मोस्टली लगाते हैं ना। आज मैंने वक्त दीन के लिए इस्तेमाल किया इसको, हम मेहंदी लगाते हैं, राइट? लगाते हैं। मेहंदी में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हैं सफ़ेद रंग से, एकदम देखने वाले को बार बार। जरा वक्त मैं निकालूंगी, एक औरत को बोलूंगी, यानी कि कोई औरत अगर निकालेगी हाथ के ऊपर, कई मर्दों का या औरतों का ध्यान जाएगा नहीं जाएगा। ये हाथ को एक औरत ने नहीं लगाया है, एक औरत ने लगाया हुआ है, ये हाथ पे नजर जाएगी, हालांकि ये कुछ पहना सजा होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, मगर इस पे नजर जाएगी या इस पे नजर जाएगी? हिंदी पे जाएगी। जवाब देना मुझे। ये लगा, हालांकि चूड़ियां भरी हुई हैं सोने की, फिर इसकी कोई हैसियत नहीं है। सोने की चूड़ियों की हैसियत नहीं है। मेहंदी वो है जो दिलों के अंदर उतर जाती है। ये सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा मर्दों के सामने सवार कर ऐसे ऐसे बाल खोल कर यूं यूं करके नहीं जाया करो, ये नहीं कहा। रंग बिरंग जैसे पहनते हैं, हाथों को सजाते हैं, चेहरों को सजाते हैं, जिस्मों को सजाते हैं, ये जिस्म का पूरा हिसाब देना पड़ेगा। कौन कौन तैयार है, किसमें इतनी हिम्मत है? लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बेटों को, अरे बेटा तुझमें हिम्मत है गुनाह करने की, कर। जमीन पे करना चाहता है तो कर, आसमान पे करना चाहता है तो कर, अल्लाह की पकड़ से छूटना चाहता है तो कर। तो बच्चों ने कहा अल्लाह से हम कभी बच नहीं सकते, हम गुनाह नहीं करते। तो यही मैं बयानात में भी कुरान के अंदर जो कहा है उसी को लाकर मैं बयान करती हूँ। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला यु'मिनून इन्ना जअलना फ़ी अमाइहिम अगलालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب آثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ اتنے سارے عورتیں بیٹھی ہیں، قرآن کتنی مرتبہ پڑھے ہوں گے، کتنے درس ہوئیں گے، کتنے گھروں میں تفاسیر ہوئے ہوں گے، مگر ان باتوں کو کیوں نہیں جان رہے ہیں؟ میری یہی تلاش ہے، کیوں نہیں جان رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم ہی جو تم کر رہے ہو ہم لکھ لیے جو چھوڑ جاؤ گے، آثارہم جو چھوڑ جاؤ گے وہ اعمال بھی لکھ دیے، یہ کتاب میں محفوظ کر دیے، وہاں پہ تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ پھر سورہ کہف میں کہتے ہیں ایک ایسی کتاب ہے رائی وطنی چیز بھی نہیں چھوڑی ہوگی، ہر چیز کا تمہیں سوال کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، مطلب نیکی رائی کی وطنی بھی تمہاری ضائع نہیں کریں گے، برائی رائی کی وطنی بھی ضائع نہیں کریں گے، یہ سارا لکھیں گے۔ آج ہم توبہ کا کریں گے، توبہ کا مطلب قسم کھانا، اللہ سے وعدہ کرنا، اے یا رب آج میں وہ چیز کو چھوڑ دیتی ہوں تیری خاطر، مجھے بہت پسند ہے، مجھے پسند ہے سور کے جانا، مجھے سور کے نکلنا بہت پسند ہے، مجھے جنت میں نکال، جنت اتنی بڑی دے کہ گھوموں پھروں بن سور کے میں، سجوں سوروں میں، عورتوں کی محفلیں تو جمع، عورتیں جمیے گا۔ اب مجھے بتانا، دو سوال کرتی ہوں، جھوٹ ہے صحیح ہے بتانا، عورتوں کا زنا زیادہ ہو گیا ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو۔ عورتوں کا زنا، لڑکیاں ہال لے گئے، کیا ہوٹل میں کمرہ لے کر عورتیں زنا کر رہی ہیں۔ بچوں کو الگ کمروں میں چھوڑنا بند کرو، بچوں کو کمروں میں کھیلنے کے لیے چھوڑنا بند کرو، بعد میں پچھتاؤ گے۔ مرد زنا آج زیادہ ہو گیا ہے نہیں ہوا ہے؟ زور سے بولو۔ حیا اس میں نہیں ہے، حیا جو کرنا ہے وہ کرنا ہے ہمیں۔ قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام کے زمانے میں یہ بیماری تھی، آج کھلے عام بیماری کیوں؟ عورتیں ڈیپ نیک پہن رہی ہیں، اتنی خوبصورت ہیں، اتنے اچھے جسم بنا کے رکھی ہیں، عورتیں گھائل ہو گئی ہیں۔ عورت کی دیوانی ہو گئی ہے، اس کے بالوں کی دیوانے ہو گئے ہیں، اس کی خوبصورتی کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ مرد کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے عورت کو، مرد کو عورت کی ضرورت نہیں پڑ رہی، مرد ہو گئے ہیں۔ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ بے پردگی کے لیے ہو رہا ہے۔ اس لیے میری کوشش جاری چل رہی ہے کہ پردے میں ہم آ جائیں گے، محفوظ موتی کیسے ہوتا ہے شل کے اندر، ویسے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ٹائم بھی نہیں ہوگی چہرہ
चेहरे पे पिगमेंटेशन, काले काले दाग नहीं आएंगे, ये सब कुछ नहीं होगा, पर्दे में होंगे। तो नियत तौबा का मतलब कोई चीज़ को अल्लाह की खातिर छोड़ना, जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह जो कहता है, अल्लाह सुब्हाना ताला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं उसको छोड़ना। फिर अल्लाह ताला कहते हैं ओ तूबू इलल्लाहि जमीआ, आयत नंबर 31 सूरत नूर में अल्लाह ताला कहते हैं हर कोई आओ, छोड़ दो वो चीज़, हर कोई आ जाओ। लिलमुमिनीन, अगर वो मोमिन हैंगे तो अल्लाह ताला कहता है उनके लिए फलाह पाएंगे। उलाइका हुमुल मुफलिहून, कौन फलाह पाएंगे? जो छोड़ेंगे गुनाह को। कौन जन्नत को जाएंगे? अब पैंट शर्ट पहन के रहते हैं, बाहर घूमते फिरते, नमाज का टाइम आते एक लहंगा पहन लेते हैं, ऊपर एक छतरी पहन लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, फिर निकाल के फेंक के फिर चले जाते हैं। ये तौबा है? तौबा तौबा, अल्लाह मग़फ़िरली, अल्लाह मग़फ़िरली, अल्लाह मग़फ़िरली 100 बार कहते हैं, सुबह शाम कहते हैं। ये इस्तग़फ़ार है, ये इस्तग़फ़ार कहते हैं, इसको तौबा कहते हैं। तौबा का मतलब पूरी तरह से वो चीज़ को छोड़ दो जो आपके रब ने मना किया है। अल्लाह ताला इतना बड़ा है, अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत के दिन मेरी एक मुट्ठी, मेरे जैसी तुम्हारे जैसी नहीं, मुट्ठी अल्लाह ताला की कैसी सिर्फ उनको मालूम, किसी और को नहीं मालूम है। मुट्ठी में 7 आसमान, 7 ज़मीन और सूरज को लपेट दूंगा, कुरान की आयत। ये एक मुट्ठी में सब आ गया, बाकी आप कितने बड़े, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और कितने बड़े रब हैं, इतने बड़े रब का डर नहीं लगता? इतने बड़े रब से नहीं डरते? इतनी बड़ी ताकत से नहीं डरते? ये एक फरिश्ता कान से लेकर लौ तक 70,000 साल तक चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। इतना बड़े फरिश्ते अल्लाह ताला के, हमारा क्या हशर करेंगे? सुनो एक चंद बातें, खबर के अंदर से ऐसे लंबे लंबे दांत होंगे, जमीन यूं फाड़ते हुए, चीरते हुए, चिल्लाते हुए आएंगे काले काले फरिश्ते। पूरी सब सुनेंगे, जिन्नो इनको सुनाई नहीं देगा, इंसानों को, जुन्नात को सुनाई नहीं देगा। ये तो दुनिया छोड़ देंगे नहीं, और सुन के ही क्या लग रहा है, छोड़ देंगे सब कुछ अल्लाह तेरी खातिर। देख के क्या हशर होगा? तब नहीं मिलेगी माफी, तब नहीं मिलेगी माफी। फिरौन ने तौबा किया, फिरौन ने तौबा किया, कलमा पड़ा मरने के टाइम पे, डूबने के टाइम पे, माफी नहीं मिली। आपको मुझे कोविड दोबारा ना आ जाए। अब तो बुखार ऐसी चल रही है, हर 8-15 दिन में सबको बुखार आ रही है, इनको बुखार, उनको बुखार, उनको बुखार, उनको बुखार। अब कोई कोरोना वरोना ऐसा कुछ दे दिए ना अल्लाह ने, अज़ाब दिए ना, दिल दहकते दहकते रह गए। सबने माफी मांगी, सबने कसम खाया हम लिपस्टिक छोड़ देंगे, सबने कसम खाए, मुंह को पट्टा मारे ना अल्लाह ताला ने, मर्द और औरत को, मुंह बंद करो, तुम्हारा फैशन बंद करो, नहीं तो बीमारी लगेगी। आज फिर क्या करे? खोल लिए, फिर क्या करे? खोल लिए। अब दोबारा अल्लाह देंगे तो फिर माफी मांगेंगे तो मोहलत नहीं मिलेगी। हमने मास्क ही नहीं पहना, हमेशा जाली डाल के मजे में रहे। मास्क पहनने वालों को सांस ले नहीं सकते थे, हम जालियों में अंदर से हवाएं आती थी, मजे से जाते थे, हम खुश हो जाते। अल्लाह तेरी खातिर हमने पर्दा किया था, ये लोग बीमारी की खातिर कर रहे हैं, इनको हिदायत दे दे, तेरी खातिर ये भी कर लें, तेरी खातिर ये सब कर लें। ठीक है, तौबा का मतलब छोड़ना है। फिर अल्लाह ताला कहते जो तौबा ना किया, वाह और मन जो लम ना यतुब, जो तौबा नहीं करा, उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, खुद पे जुल्म कर रहे हैं, खुद को जहन्नुम में डाल रहे हैं, खुद जहन्नुम में ले जाके फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला कहते हैं सूरह फुरक़ान आयत नंबर 70 में कहते हैं इल्ला मन ताबा, मतलब इल्ला ला इलाहा, ला मतलब आप नहीं बोलना, आप नहीं बोलना, ला इलाहा, बोलो कोई माबूद यानी अल्लाह के सिवा नहीं है कोई भी इबादत के लायक, इल्ला मगर, इल्ला मगर, इल्ला मगर। अब अल्लाह क्या बोल रहे हैं? इल्ला मन ताबा, मगर जो तौबा किया। उसके बाद इल्ला मन ताबा व आमना, और तौबा करने के बाद ईमान लाया। कुरान के अंदर की आयत में जो लिखा गया है, कुरान में जो कहा गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए हैं, उस पे ईमान लाया।
मगर जो तौबा किया, सबसे पहले छोड़ने की नीयत किया, मतलब क्या, सबसे पहले गुनाह छोड़ने की नीयत किया, फिर ईमान लेकर आया। कुरान में अल्लाह ने कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, इल्ला मन ताबा व आमन अमिला सालिहन, ईमान लाने के बाद अमल किया। देखो कितनी चीजें हैं हमारे पास जिंदगी में, एक गुनाहों को छोड़ना, दूसरा ईमान लेकर आना, तीसरा अमल करना। दोबारा याद करो इसको, सबसे पहले छोड़ना, तौबा करना, नंबर 2 ईमान लेकर आना, नंबर 3 अमल सालेह करना। इल्ला मन ताब आमन अमिल सालिहन फउलाइका, यही इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह क्या करते हैं, क्या करते हैं अल्लाह ताला, गुनाहों को निकाल कर युबद्दिलुल्लाहु अमालहुम, बदल देंगे अमाल। बदल मालूम है ना हमको, युबद्दिलुल्लाहु, अल्लाह बदलेगा, युबद्दिलुल्लाहु, अल्लाह ताला बदलेगा, युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम, गुनाहों को, युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम, वो बदल देगा गुनाहों को हसनात, नेकियों में। समझो मैं जिंदगी में 30 साल मैंने गुनाह किए या 25 साल गुनाह किए, पूरे 25 साल के गुनाह उठाकर 25 साल नेकियां लिख देंगे। अगर कोई औरत अब 50 साल की हो गई है, 50 साल में तौबा करके अल्लाह को मान जाएगी, 50 साल के गुनाह उठा के लिख देंगे। जाके फुरखान याद रहेगा आपको, फुरखान किसी का नाम होता ना, याद रखो, 70 आयत खोलो जाकर। अल्लाह ताला कहते हैं वो काना गफूर रहीम, और वो कौन है, माफ करने वाला, माफ करने वाला, माफ करने के बाद रहम करके जन्नतें देने वाला। मैं और आप कुछ करूंगी तो दिल में रहेगा ना। अब फलाने कोई बोलेंगे नहीं भी अब तुम घर पे नहीं आओ, हम वहीं पे भेज देते हैं, अरे क्या ऐसा बोल दिए, दिल में बात आ जाएगी, समझ में आ गया। मगर ये अल्लाह ताला ऐसे नहीं, हम इंसान बुरे हैं, इसलिए हम अल्लाह ताला को देखो गफूर रहीम है, हम सब एक दूसरे को माफ करते चलें। नियत करो, अपने आप को सही करो एक चीज से, तौबा एक चीज की कर लो। आईब्रो करते हो, कौन आईब्रो करते हैं यहाँ पे, सुभान अल्लाह, दिख रहा था उस वजह से पूछ पड़ी। मैं खुद करती थी, लोग बीच में के निकाल सकते हैं, काट नहीं सकते, ओके, काट नहीं सकते, बीच में के निकाल सकते हैं, ये नाक के बाल निकाल सकते हैं। यूरिफुल मुजरिमून बिसीमाहुम सीमाहुम व युखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, पेशानी के बाल पकड़कर, पैरों को पकड़कर हम फेंक देंगे जहन्नुम में। मैं तो कहती हूँ याद रखो, ये आयत को लिख लो, मैं डायरी में लिखती हूँ, लाई नहीं हूँ डायरी, कभी आऊँगी तो इंशाल्लाह आप आ जाना जुमेरात को, पेन पेपर रेडी करो, उनको दो, जो नाम ऐड करना चाहते हैं दे दें। तो खोल के देखो कुरान करीम में, सबके घर में कुरान है, कुरान है मगर उसको अमल नहीं करे तो फायदा क्या रखना। कुरान करीम घर के अंदर है, मकबल में लपेटा है, उसको बोसे देते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको पढ़ते भी हैं, कितने बार पढ़ के मैयतों को बख्शते हैं, हालांकि बख्शने का नहीं है, जो जो पढ़ा है उनको सबको चला जाएगा। इसी में कह दिया ना, आयत नंबर 12 सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने कह दिया ना, अल्लाह ताला ने कह दिया यासीन में कि जो पढ़ेंगे वो हमने भेज दिया है, कुछ रहेगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं, जो भी है हमने लिख लिया है, मरने के बाद का भी सामान लिख लिया है। आप मरेंगे, जब आएंगे, मैं और आप नेकी करके भूल गए होते ना, भूल जाते हैं ना, कभी पैसे ही कहीं रख के भूल जाते हैं, कभी एक ड्रेस रख के भी भूल जाते हैं, मगर अल्लाह ताला भूलता नहीं है। देखो जो रब खाता नहीं है, जो रब पीता नहीं है कुछ, जो रब कपड़े पहनता नहीं है, जो रब घर नहीं रखा है अपने लिए, जो रब ने घर नहीं रखा अपने लिए,
कोई साजो सामान नहीं रखा अपने लिए। हमारे लिए इतना सारा फर्नीचर, हमारे लिए गाड़ियाँ, हमारे लिए सब्जियाँ, हमारे लिए फ्रूट्स, हमारे लिए हीरे जवाहरात, हमारे लिए मोतियाँ, हमारे लिए जानवर चौपाए, हमारे लिए जानवर खाने पीने के लिए, हमारे लिए परिंदे आसमान में उड़ने वाले, हमारे लिए समंदर के अंदर की मछलियाँ, हमारे लिए चलने वाले बकरे, गाय, घोड़े सब खाते हैं। हर चीज दिया है। सूरज हमारे लिए दिया गया है कि रोशनी आए तो चलो जाओ ढूंढो, तलाश करो, अपनी माश को तलाश करो। फिर रात को बुझा दिया, फिर आपने चांद और तारों को देकर खुशनुमा बना दिया कि दिल किसी का खुश हो जाए, तारों से रास्ता दिखाना कर दिया। ये कुरान की आयतें पढ़ रही हूं मैं, कुरान की आयतें पढ़ रही हूं मैं, उर्दू में जो बोल रही हूं ये सारा कुरान है जो हमें समझ नहीं आती क्योंकि हम अरबी नहीं अजमी है। हर चीज अल्लाह ताला ने दे दिया। अल्लाह ने सब दे के कह दिया है तू मेरा है मैं तेरा हूं, जो मेरा होगा मैं उसका हूं। कभी मुझे कुछ नहीं है मेरे पास कोई जरूरत की चीज, मैं कहती हूं या रब सब खजाने तेरे हैं, ये बंदे तेरे हैं, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। अल्लाह कहते हैं फ़आलुल लिमा युरीद। अम्मा जुज़ में कहते हैं अल्लाह ताला मैं जो चाहता हूँ मैं वही करता हूँ। औरतों की और मर्दों की हम सब की क्या शिकायत है पता है? इतनी नमाजें पढ़े, इतने रोज़े रखे, इतनी इबादतें करे, फिर परेशानियाँ की परेशानियाँ छीन जाते ही नहीं, क्योंकि हम शिर्क करते हैं अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला को बड़ा नहीं मानते हैं, अल्लाह ताला को बड़ा नहीं मानते हैं, अल्लाह ताला के अलावा किसी और को बड़ा मानते हैं। कोई तावीज़ लिख कर दें आमिल हजरत, उनको बड़ा मानते हैं। कोई मोचर लेके उतारे, अंदर जाके देखो उनके बेटे का एक्सीडेंट होकर रहता है, वो बोलता है तुम्हारे लिए मैं इलाज करके देता हूँ। खुद मेरे घर के सामने हैं जो रहते हैं, उनके घर में इतनी गरीबी होती है। कई लोगों को देखती हूँ जो दरगाहों में पीरो मुर्शद हैं, उनके घरों में बीमारियाँ, कैंसर, ये वगैरह। क्यों ये सभी? वो खुद अपने आप को सही नहीं कर सकते, मुझे और आपको क्या सही करेंगे? इतना बड़ा रब, बैठ के देखो वो आंख कितने बड़े हैं, वो आंख कितने बड़े हैं, शान के हिसाब से पूरे आसमान, पूरे जमीन, सब कुछ उनको नजर आता है। मछली के पेट के अंदर का बच्चा नजर आता है, चींटी के अंदर, पहाड़ के अंदर का बच्चा बनाता है मेरा रब। मुसव्विर, ये मेरा भी चेहरा उसी ने बनाया है, तुम्हारे चेहरे भी उसी ने बनाया है। उसमें नुक्स नहीं काटो, उसकी नाक गिडी, उसका कान टेढ़ा, वो फेंगड़ी। कुरान कहता है सब ना कहो, कुरान की आयतें ये सारी बातें हैं। मुंह ऐसा नहीं मोड़ो, उनको नहीं झटको, दो मुंह नहीं बनाओ, पीठ पीछे नहीं बोलो, गीबत नहीं करो, ये सारी बातें कुरान की आयतें हैं। अब आयतों का नंबर ज्यादा लूंगी, आप बेजारा के उठ के चले जाएंगे। इसलिए 2-3 हवाले मैंने दी ताकि कुरान करीम जाके खोलें। सूरह नूर आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला कहते हैं पूरे आ जाओ तो जन्नत को में जाओगे, पूरे आ जाओ, तौबा कर लो, पूरे छोड़ दो गुनाहों को। जो नहीं छोड़ा वो जालिम होगा, जो नहीं छोड़ा वो जालिम होगा। सूरह हुजूरात आयत नंबर 11, जालिम होगा जो जुल्म किया है। 2 चीजें आते हैं, एक तौबा, एक इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार का माना माफी मांगो। कब मांगते हैं? सारा दिन। 1000 बार मैं पढ़ी, क्या भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कब पढ़ना है? कब तौबा करना है? सहरी करते हैं ना, वो वक्त, सहरी का वक्त। क्योंकि मैं वो बात बता रही हूँ जो हमें मालूम है, जो नहीं मालूम वो नहीं बोलना है। सहरी के वक्त में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया में आते हैं। कैसे आते नहीं मालूम। सही बुखारी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि आकर निदा देते हैं, आवाज देते हैं, कोई है, कोई है। गौर से सुनो अल्फाज, ये मैं लिख कर याद हो तो भी लिख के याद करती हूँ कि खता ना हो जाए, कहीं सही अल्फाज में याद करूं। कोई है जो मुझको पुकारे, मैं उसकी पुकार सुनूं। मैं कहती अल्लाह मैं पुकारती हूँ, सारों को तू हिदायत दे दे, सबको दीन के रास्ते पे चला दे, सब बीमार हैं उनको शिफा दे दे, सबको ईमान दे दे, सबको तेरा दीवाना बना दे, सबको कर दे। फिर मैं अपने लिए मांगती हूँ, फरिश्ते मेरे लिए दुआ करेंगे जो अर्श को उठाए हुए हैं। आप अगर करेंगे आपको दुआ करेंगे। अपने लिए सब मांगते नहीं बैठ जाओ, उम्मत की फिक्र करो। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे 3 मर गए, तीनों बच्चे मर गए, तीनों मर गए। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती, हर कोई कहता है मोहम्मद की माँ, कोई कहता है फलां की माँ, मैं किसकी माँ हूँ? आप एक दुआ करो ना, मुझे एक बेटा हो जाए,
दुआ करो ना मेरे लिए, ना हर नबी को कुछ ना कुछ देते हैं, आपको भी दिया, मांग लो ना। ऐशा नहीं मांगता मैं, कुर्बान मेरी औलाद भी, किसके ऊपर, कितने हैं, कैसे हैं, किसके लिए किया है? मेरी उम्मत के लिए मैंने वो एक रख दिया है सवाल कि क़यामत में अल्लाह ताला उनको बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे। किसको बख्शेंगे? जो शिरक नहीं करेगा। जो अल्लाह के नबी के खिलाफ करे होंगे तो जमाएंगे? नहीं जमाएंगे, याद रख लेना। आप दिन भर दरूद पढ़ो, दिन भर सलाम भेजो, खाने पका के, देगें पका के अल्लाह के नाम से बुजुर्गान दिन को सवाब करो, मगर दरगाहों के पास नहीं जाया करो, नहीं जाया करो। वो नहा नहीं है वहां पे, बरज़ख में है, वो अंदर है, जन्नत में है, वो जन्नती है। जन्नत में उनकी रूह है, रूहों को अल्लाह ने परिंदे के जौफ में डालकर रिज़्क़ खा रहे हैं। वो जन्नत में, हम कमजरफों के साथ क्यों रहेंगे? वो नहीं है। मैंने देखा, एक दिन मैंने बैठी रही अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम की मज़ार के पास तलाश करने के लिए, कई दिन बैठी रही मैं देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ क्या क्या पुकारी मैंने। एक पुकार मैंने किसी कब्र के पास नहीं सुनी। मैंने अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम के पास, दाऊद नबी अलैहिस्सलाम के पास, सालेह नबी अलैहिस्सलाम के ऊँटनी के निशानात, काफ़ी चीज़ों की जगह मैंने कोशिश की। मरियम अलैहिस्सलाम की बाप की मज़ार के पास सारा दिन बैठी रही मैं, सारा दिन बैठी रही। कान लगा कर कोई आवाज़ आएगी क्या? नहीं। ला तस्मिउल मौता, कुरान करीम कह दिया, कोई भी मरे हुए अनबिया उलिया सालिहीन आपकी सुन नहीं सकते। इस कुरान को क्यों झुटलाते हो? हजरतों की क्यों सुनते हो? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यों नहीं सुनते? आपके घर में कुरान करीम है, आपको भी थोड़ी बहुत उर्दू आती है, आप पढ़ के देखो कुरान क्या कहता है। कुरान अलग जुदा जुदा नहीं है, नबी जुदा जुदा नहीं है, दीन जुदा जुदा नहीं है, रब हमारा जुदा जुदा नहीं है। सब एक ही खबर है, एक ही क़यामत है, एक ही मीज़ान है। हम सारे एक होंगे तो जमा होंगे झंडे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे खड़ेंगे, वरना कुछ नहीं। या गौस के झंडे के पास खड़े, रहमतुल्लाह अलैह के पास खड़ेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। खुद उन्होंने, उनकी किताब पढ़ के देखो, उनकी किताब पढ़ के देखो, उनकी किताब पढ़ के देखो। 7 साल तक उन्होंने पत्ते खाकर अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। हाँ, रात को नींद आती तो गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह समंदर में गुस्ल करके पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत करते थे। मुरीद गौस क्यों ऐसे हैं? हाँ, मुरीद गौस क्यों ऐसे हैं? गौसे पाक के मुरीद कहने वाले ऐसे क्यों हैं? उनके जैसे क्यों नहीं हैं? उनके जैसे क्यों नहीं है? उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की है, उन्होंने अल्लाह ताला के लिए नहाया हुआ है रात को, उन्होंने पत्ते खाए हैं, खाने नहीं खाए हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम किस दीन को लेके बैठे हैं? तो इस्तग़फ़ार तौबा है छोड़ना, इस्तग़फ़ार है माफ़ी मांगना। अल्लाह ताला 3 चीज़ें कहते हैं। नंबर 1 हो गया, कौन है? यहाँ पे ख़त्म करती हूँ 3 अल्फाज कह के, कौन है? जरा गौर देना, रब्बुल आलमीन की बात है। ऐसा ना हो फरिश्ते हमें बदुआ दे के चले जाएं। फरिश्ते अर्श से आते हैं, मलकाए आला आते हैं, अल्लाह के करीब से आते हैं जहाँ दरसुल कुरान होता है, फिर वापस अल्लाह ताला के पास जाते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं तेरे बंदों ने ये मांगा तुझसे, तेरे बंदों ने ये कहा ऐसा, तेरे बंदों ने बात की ऐसी, तेरे बंदे ऐसे थे। सारा कहेंगे तो क्या बोलेंगे? अल्लाह तेरा नाम ले रहे थे, उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। अपनी अपनी पूछ अपने अपने हाथ में है। बिस्मिल्लाह। नंबर 1, कौन है जो तुम में से मुझको पुकारे, मैं उसकी पुकार सुनूं। नंबर 2, कौन है तुम में से जो गुनाहों की मग़फ़िरत मांगे, मैं उसको गुनाहों को माफ़ करूं। गुनाहों की बख्शिश करवाने के लिए सबसे पूरा दिन कर सकते हैं, पूरा दिन इस्तग़फ़ार। अजीम वक्त, बेहतरीन वक्त, अफजल वक्त ये वक्त है। और तीसरा आप कहते हैं कौन है जो मुझसे मांगे। कोई है भाई ऐसा? मैं आपके पास मांगू आप देंगे? मेरे पास मांगेंगे मैं दूंगी?
نہیں دیں گے. میٹھے باتیں بڑی اچھی ہیں, دیتا کوئی نہیں ہے. وہ رب پوچھتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں. اللہ ہم سب تجھ سے آج مانگتے ہیں ہمیں دنیا آخرت میں جنت عطا کر دے, دنیا میں جنت عطا کر دے, آخرت میں جنت عطا کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم کو پردہ کرنے والا بنا دے, شریعت کے حساب سے چلنے والا بنا دے. ہم سب نادان ہیں, ہمیں عقل نہیں ہے, ہمیں علم نہیں ہے, ہمیں سمجھ نہیں ہے, ہمیں خوف نہیں تھا تیرا. آج ہم جانتے ہیں تو کتنا بڑا ہے, تو کتنا عظیم ہے, کتنا تکبر والا ہے, کتنی ریاکاری والا ہے. اتنے بڑے رب کے پاس ہاتھ اٹھانے سے اللہ تعالیٰ کہتا مجھے شرم آتی ہے کہ میں نہ دوں, میں نہ دوں. اللہ ہم سب کو عطا کرے. کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے؟ استغفار کا معنی, اے اللہ میرے استغفار کا معنی اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, بخش دے جو میں نے گناہ کیے ہیں. پھر اس کے بعد جان بوجھ کے اگر کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. کب تک؟ کب تک؟ غر 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 جو نزا کی آواز آتی ہے نا, اس سے پہلے تک نزا آ گئی, کینسر آ گیا, ڈاکٹر بول دیا اب مر رہے ہیں 3 دن میں, کسی کو بول دیا وہ توبہ کریں گے, ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کوئی سوال؟ یاد ہے آپ سب کو سورہ نور آیت نمبر 31, سورہ فرقان آیت نمبر 70, 70 سال کی عمر یاد رکھو, 70, سورہ فرقان آیت نمبر 70. ٹھیک ہے, اب مجھے بتاؤ ہم چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے؟ کون کون پردہ کرنا چاہتے ہیں؟ جو حجاب کر کے جانے والی پیاری پیاری خوبصورت سی بہنیں, اللہ کا دیا ہوا نور, اللہ کی دیا ہوا پیارا گورا گورا رنگ, اللہ کا دیا ہوا بڑی بڑی آنکھیں, اللہ کے دیے ہوئے چھوٹی چھوٹی آنکھیں, اللہ کے دیے ہوئے لمبی لمبی ناک, اللہ کی دی ہوئی کیسی پیاری پیاری نہوٹیں, اللہ کے دیے ہوئے گال, اللہ کے دیے ہوئے بال, اللہ کا دیا ہوا یہ جسم, اللہ کی خاطر وصف کر دو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میرا ہو جا, میں تیرا ہو جاؤں گا. سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا, ہر کوئی تمہارا دیوانہ ہو کے رہے گا. تمہارا شوہر تمہارا دیوانہ ہو جائے گا. ہمارا شوہر کہتے ہیں نہیں وہ مرد ہے, وہیں نہیں جاؤ, وہی میرا برقع چھڑائے تھے, طلاق دینے والے تھے. برقع پہن کے آؤ گی تو طلاق, چھوٹی سی عمر, سمجھ نہیں, اب مان گئے ممی, امی کو کہے, امی بولے جاؤ, شوہر جو کہتا ہے کہو, وہ جو بولتا ہے سنو. ایسا نہیں ہے اسلام میں. قرآن کے بعد شوہر کی بات ماننا ہے. قرآن کہتا ہے پردہ کرو, شوہر کہتا ہے نہیں کرو تو نہیں ماننا ہے. قرآن کی بات ماننا ہے. اس کے بعد شوہر آپ کو بلاتے ہیں آپ محبت کے لیے تو فرض نماز پڑھ کے دعا نہیں مانگنا ہے, اپنے شوہر کے پاس جانا ہے. کہاں کیا کرنا وہ نہیں کرتے. پھر شوہر ناراض تو اس کو ناراض کر کے رات بھر سلاتے ہیں بیچارے کو, وہ بات نہیں مانتے. بولا آئیبرو کرو, اور میرے شوہر بولے با آئیبرو کرنے, خود کا دل رہتا ہے, خود اچھے دکھنا چاہتے ہیں, بیچارے پہ تھوپتے ہیں. ہم لوگ ایسے ہی کر کے اپنے آپ کو جہنم میں کھڑا کیے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. آپ سب راضی ہیں؟ راضی ہیں؟ اپنے رب سے راضی ہیں؟ اپنے رب سے راضی ہیں؟ جنت میں اگر آج ہم پردہ کریں گے, اپنے آپ کو بند کر دیں گے, اپنے آپ کو مخفی کر دیں گے, جنت میں ایسا لباس دیں گے, جنت میں اس عورت کے جسم کے اندر کے دل کے اندر کے تار نظر آئیں گے, اتنے پتلے کپڑے دیں گے, کپڑے سیئیں گے, طوبہ جھاڑ سے فرشتے کپڑے سیل کے رکھیں گے. دعوت ہوگی 40 سال تک خوشبو محلوں میں رہے گی. اتنے بڑے محل ہوں گے. دعا کرو اللہ ہمارا, میرا محل, آپ کا محل, ہم سب کے محل ہو. ہم سب دعوتیں کریں, آئیں جائیں. کیسے جائیں گے؟ پیٹرول والی گاڑی نہیں, اڑنے والے گاڑیاں, جو ہم سب دیوانے ہیں اس کے نا. کتنا اچھا دل لگتا ہے نا, اڑ کے ایسے جائیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کو سنو, ڈھونڈو, پڑھو, پھر دنیا کی اس بساط پہ دل نہیں لگے گا. آخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وان الحمد للہ رب العالمین.
سبحان اللہ الحمدللہ نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة والسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے سے خطا کچھ ہو گئی ہے، آپ کا کسی کا دل ٹوٹا ہے، سب سے معافی مانگتی ہوں. دے دو نمبر پہ پڑھ دو. میرے پاس گروپ ہے، جمعرات کے دن میرے گھر میں درس ہر جمعرات ہوتا ہے، مہینے میں ایک بار شادی محل بیت المال میں ہوتا ہے. اور اگر کوئی نہیں آ سکتے پین پیپر دیں، جو بیان جو ہوتا ہے آپ کو آئے گا. جو سوال قرآن میں آیت کہیں آپ بھیجو، آڈیو میں آپ کو جواب ملے گا. جو میں بولی ہوں دلیل آپ کے پاس ملے گی.